اعلیٰ حضرت والا ہو، وہ چاہے وہ جس نے ہمیں کنز ایمان دیا ہے، ایمان و عقیدے کا محافظ جو ہوا ہے، عرب و عجم عرب و عجم نے جس کو امام اپنا کہا ہے، او میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، او میرا۔ آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ علی کا لال ہے موجود، دیکھتا کیا ہے؟ ارے قدم کو چوم لے نادان، سوچتا کیا ہے؟ کاندھے پہ اٹھا کر پالکی فخر کرتے ہیں۔ ارے رضا سے پوچھ لے سید کا مرتبہ کیا ہے، رضا سے پوچھ لے سید کا مرتبہ کیا ہے۔ ارے تبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، ولی نعمت، ماہی بدعت، کنز الکرامت، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، علامت الزمان، فرید الاوان، علم کی چٹان، سنیت کی شان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے کہ تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت کے چہرے کی زیارت کرے۔ اب آئیے صرف 5 شعر کے لیے اپلیٹا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے۔ آئیے ذرا جی لگا کر نبی آل نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیوں نبی کو زندہ مانتے ہیں تو زندہ نبی پر زندگی کے ساتھ درود بھی پڑھتے ہیں، اور درود پڑھتے اس لیے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ذکر کا آغاز ہوتا ہے، فَإِذَا اسْتَفْتَحُوا الذِّكْرَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، جب لوگ ذکر کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، درود پڑھنا بھی ذکر ہے۔ اگر یہ ذکر کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو پہلا کام یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سر نہ ہلائیے، زبان ہلائیے، اس لیے کہ زبان آپ کو ذکر کے لیے دی گئی ہے، اور ہر علاقے کے اشارے الگ ہوتے ہیں۔ میں کچھ اور بن جاؤں، کچھ اور سمجھ جاؤں تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہیں ہاؤ کرتے ہیں، کہیں ایسے ایسے کرتے ہیں، تو وہ ایسے ایسے ہمارے یہاں منع کا ہوتا ہے، آپ کے ایسے کرتے ہاؤ حضرت، تو وہ ہاؤ حضرت نہیں چاہیے مجھے سبحان اللہ کا ذکر چاہیے، الحمدللہ کا ورد چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، سرکار فرماتے ہیں وَاسْتُجِيبَ لَهُمُ الدُّعَاء، جب ذکر شروع کیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں ذکر، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ وَأَقْبَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِوَجْهِ مَا لَمْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَيَتَفَرَّقُوا فَإِذَا تَفَرَّقُوا انصرف الكتب يلتمسون حلق الذکر۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا کمال یہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی طرف نظر کرم فرمایا کرتا ہے، اور جس کی طرف نظر کرم ہو جائے، حدیث مصطفیٰ بولتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَنْظُرُ لام تاکید والا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَنْظُرُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر نظر کرم فرماتا ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھ لیا کرتا ہے، جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا، اللہ جس پر نظر کرم ڈال دے اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ سنیو خوش ہو جاؤ، مسلکی اعلیٰ حضرت نے ہمیں کعبے کے بدر الدجا جیسا درود دے کر کے، مسلکی اعلیٰ حضرت نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا کے جہنم کے عذاب سے بچا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت، اللہ اکبر۔ بستے بستے قریہ قریہ، بستے بستے قریہ قریہ۔ توجہ،
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस, जिसको अल-कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने सफ़ा 3 पर तहरीर किया। अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लंबी हदीस है, जरा तवज्जो कीजिएगा। हदीस मुस्तफ़ा को अगर तवज्जो से नहीं सुना तो फिर समझिए कि ना सुनने वाले के लिए महरूमी है, हिरबा नसीबी है। कामयाबी तो यही है, आपको भी, आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते रहिएगा। हदीस पाक के अल्फाज सुने। अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिबी व जनाहुन बिल मगरिबी व रासू तहतल अर्शी व रिजलाहु तहतल अर्दिस साबिआ व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीह सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रिशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामह। सरकार इरशाद फरमाती, अल्लाह का एक फरिश्ता, फरिश्ते तो बहुत है मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीबो गरीब है। इतना बड़ा फरिश्ता है, इसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में, एक है ईस्ट में, दूसरा है वेस्ट में, एक है पूरब में, दूसरा है पश्चिम में। और कितना बड़ा है, पैर 7वीं जमीन के नीचे है, उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे है। कौन सा अर्शे मुअल्ला? जिसके नीचे नूर का समंदर है। सरकार फरमाते हैं ये फरिश्ता पैदा क्यों हुआ? फरमाया फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया। सरकार तो जानते हैं ना, मेरी उम्मत में खाली मर्द ही नहीं है, हजरत राबिया बसरिया जैसी जात भी तो है, औरतें भी तो है। हजरत राबिया बसरिया, सरकार की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और भी बेटियां। ये शियों का अकीदा है जो सरकार की सिर्फ एक बेटी मानते हैं। हमारा अकीदा यह है, ज़ैनब भी मुस्तफा की लगते जिगर है, उम्मे कुलसूम भी लगते जिगर है, हजरत रुकैया भी लगते जिगर है, फातिमतुज़ ज़हरा भी लगते जिगर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। बस बहुत जल्दी में सुनिएगा मेरी गुफ्तगू को, आगे बढ़े। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है जा। कहां जाए? फरमाया ये अर्श के नीचे जो नूर का समंदर है ना, अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्श। आला हजरत की फतावे रज़विया की 30वीं जिल्द जो हमारे पड़ोसी मुल्क से मुतरजम जो छपी है, उसमें बड़ी प्यारी हदीस तहरीर फरमाई गई। अल्लाह ताला ने जब अर्श के नीचे पानी का समंदर भी पैदा किया, फतहर्रका फस्तरबा, हरकत में आ गया। अल्लाह फरमाता है, वही के अंदर जिक्र की गई है, वही जो वही है गैर मतलू है। फरमाया फ़कतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकना। रब कहता है मैंने उस पर अपना कलमा लिखा और नामे खुदा के साथ नामे मुस्तफा लिखा। जैसे ही लिखा वैसे ही हरकत बंद हो गई। मैं कहता हूं मेरे सुन्नी, उल्टे सीधे पीरों के पास, उल्टे सीधे पंडितों के पास तुम्हें जाकर के ये तावीज गंडे जो गलत तरीके से होते हैं, जो शिरकिया कुफरिया होते हैं, उनकी तरफ जाके और ढोंगियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठो, मुसल्ला बिछाओ, वुजू करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों का खात्मा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब आगे बढ़े। अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर का समंदर है। फरिश्ता गया, गोता लगाया, निकला। गोता लगाने के बाद जब निकला, वयनफुज़ु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ने लगा। जब झाड़ा, फयक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा, उसके हर पर से एक कतरा टपका। और मालूम है उसके जिस्म पर कितने पर है? व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रीशुन, अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। अगर मुफ्ती साहब क़िबला मेरी याददाश्त, मेरी मालूमात साथ दे रही है तो 18,000 मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। ये तो मैं सिर्फ जिन्स की बात कर रहा हूं। अगर 9 पर चला जाऊं तो न जाने क्या क्या है। आप जानते हैं ना, हैवान जिन्स है मगर फरस 9 है, हैवान मुफ्तरिस 9 है, न जाने असद 9 है। इन 9 की तरफ नहीं जाता, खाली जिन्स की बात कर रहा हूं। अगर जिन्स देखी जाए 18,000 तो पता ये चला 18,000 पर है उसके जिस्म पर। सरकार फरमाते हैं उसके हर पैर, उसके हर पर से एक कतरा टपका। मेरे सुन्नी ये कतरों का हो क्या रहा है? फरमाया फयक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा, उसके हर पर से एक कतरा
कतरा टपका। अब आगे क्या हुआ? अगर अगला जुमला आपने मिस कर दिया तो मैं समझता हूं तकरीर की सारी गुफ्तगू को आपने मिस कर दिया है। अल्लाह करे आप नहीं मिस ना करे, जहन में बिठा कर लेकर के जाए। और ये फिर रहे जो डगर नगर नगर नगर, अभी इनका ऑपरेशन भी कर देता हूं, इसलिए कि मसलकी आला हजरत में बदअकीदा देवबंदियों का रद्द फर्ज आज़म है। और ऐसी तहरीकों से हमारा कुछ लेना देना नहीं जो फर्ज आज़म को छोड़ते हो। मसलकी आला हजरत कहता है फर्ज आज़म पहले करो, बाद में हो जाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। तवज्जो, कुछ नहीं, मेरे मुर्शिद ने जिससे बचने का हुक्म दिया है, बचकर रहोगे तो ही फायदा मिलेगा। ये हजरात भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मगर मैं अपनी आंखों देखे हाल जानता हूं। बेशक बेशक, जानता भी हूं, मानता भी हूं। बेशक। मुर्शिद का दामन क्या मिला? वाह वाह। एक साहब ने कहा कि अगर वो मुबल्लिग नहीं, इधर के मुबल्लिग नहीं, उधर के मुबल्लिग नहीं, मसलक के नहीं, तो फिर क्या है? मैंने कहा ये तफसील मत करवाइए, जबान खुलेगी तो बता देंगे। वाह वाह। ये तो एक आम आदमी भी जानता है, मगर इतना याद रखो, जिसको मुर्शिद ने कह दिया है। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ताजुश शरिया का ये जुमला बाबे अमाल से है कि अकायद से है? क्या बात है, वाह वाह। बोले बोले अकीदे वाला जुमला है। आज ताजुश शरिया ने यह जुमला बोला क्यों? फर्ज आजम का फुकदान हो रहा था। अभी एक जुमला बता रहा हूं, हजरत इमाम गजाली की किताब इल्जामुल अवाम अन इल्मिल कलाम, नेट पर सर्च कीजिए। उन्होंने साफ लिखा है, बुजुर्ग जो अकायद के मामले में हमें ताबीरात, अल्फाज, वर्ड्स, सेंटेंस, वाक्य, जुमले दे करके गए हैं, फरमाया जिम्मेदारी है तुम्हारी जिम्मेदारी है, वही जुमला बोलो, उसमें तशरीह मत करो। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है, ये जुमले पर गौर कीजिएगा, सब नोट कर ले इस चीज को, इसलिए कि राज़िक अल्लाह है। अल्लाह करे इस जुमले से मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंच जाए। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह राज़िक है, रोजी मिल जाएगी, दो चार बढ़ने से कुछ नहीं होता। क्या बात है, वाह। आखिरत में बचाकर ले जाए, वाह वाह वाह। उससे बड़ा कुछ नहीं। आगे बढ़े। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम क्या होता है? उसके हर पर से एक कतरा टपका। उसके बाद क्या होता है? अगला जुमला सुनिएगा। उसके बाद ये होता है, फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है, एक फरिश्ता पैदा करता है। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत जलालुल मिल्लती व दीन से याद करते हैं, हदीस को तहरीर करते हैं। सरकार ने फरमाया, अल्लाह हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है। हमने कहा फरिश्ता करता क्या है? सरकार राज़िक है, रोजी मिल जाएगी, दो चार बढ़ने से कुछ नहीं होता। क्या बात है, वाह। आखिरत में बचाकर ले जाए, वाह वाह वाह। उससे बड़ा कुछ नहीं। आगे बढ़े। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम क्या होता है? उसके हर पर से एक कतरा टपका। उसके बाद क्या होता है? अगला जुमला सुनिएगा। उसके बाद ये होता है, फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है, एक फरिश्ता पैदा करता है। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत जलालुल मिल्लती व दीन से याद करते हैं, हदीस को तहरीर करते हैं। सरकार ने फरमाया, अल्लाह हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है। हमने कहा फरिश्ता करता क्या है? सरकार। और क्यों है? फरमाया इसलिए कि ये दुरूद जो दुआ है ना, दुआ किसकी दुआ का इंतजार? सरकार ने फरमाया इंतजार करता है अपनी माँ की दुआ का, बाप की दुआ का, भाई की दुआ का, दोस्त की दुआ का। हमने कहा ये जो बदअकीदा कहता है तीजा बिदात है, मैंने कहा इसको पहचान ले, ये तेरा दुश्मन है। अरे दोस्त तो वो होता है जो मरने में के बाद भी तेरा दोस्त बन करके रहे। और सुन्नी ने यह दर्श दिया है, हम मरने के बाद छोड़ते नहीं।
नहीं है और मजबूती से पकड़ लिया करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब नबी सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, तवज्जो तवज्जो इधर, क्या फरमाया? फरमाया इंतजार करता है किसकी? कहा कि बाप की, भाई की, इनकी दुआ का। मेरे सरकार अगर दुआ मिल जाए, फैदा लहिकतु, कहा दुआ मिल जाए तो वो दुआ कितनी पसंदीदा होती है उसको। इधर देखिए यार, इधर देखिए, मैं आपके चेहरों को देख करके कभी कभी परेशान हो जाता हूं। अल्लाह खैर करे, समझ गए आप? मत घबराइए। मैंने एक शेर में अर्ज किया था, अल्लाह करे आप समझ जाए मेरे शेर को। क्यों करें हम रुख कहीं का इस वतन को छोड़कर? क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। क्यों करें हम रुख कहीं का इस वतन को छोड़कर, हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता नहीं। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए आप? हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक। बेशक बेशक हक है। यरिसु इबादियस सालिहून, हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक। हमसे वारिस इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। क्या बात है। अबे वो बसाए, तुम भगाओ। कब है यह मुमकिन भला? बात है, तुमको शायद पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं। क्या बात है, वाह। हमें अपनी पर आ गए तो ऐसा बिठाएंगे जो कयामत तक उठ नहीं सकते। क्या बात है, बेशक हक है। तो आगे बढ़े। हमारा सदका तो ये भी खा रहे हैं ना, जिनको मसले के आला हजरत समझ में नहीं आता, कहते हैं पांचवा कहां से आ गया, जिनको देवबंदी वहाबी कहा जाता है, खबीस कहा जाता है, एक और चला है फिरका मौलाइया। अभी बताऊंगा मैं तुझे, तवज्जो है आपकी? आगे बढ़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया सुनो, अगर दुआ की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से वो उस मैयत के लिए जमीन और आसमान की सारी चीजों से बेहतर होती है। अगला जुमला, अपने बुजुर्गों की भी तवज्जो, अपने जवानों की भी तवज्जो। सरकार फरमाते हैं वइन्नल्लाह तआला लयुदखिलु अला अहलिल क़ुबूरी मिन दुआई अहलिद दुनिया अमसालल जिबाल। तुम यहाँ दुनिया वाले दुआ करते हो, अल्लाह कब्रों में पहाड़ों के बराबर सवाब उतार दिया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं गिफ्ट देना चाहता हूं किसी भाई को जिनका इंतकाल हो गया हो, मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूं। नहीं, मैं इंतकाल वाले को करना चाह रहा हूं। आप भी करना चाहते हैं? करना चाहते हैं ना, और कर रहे हैं, गिफ्ट करते हैं, मगर पता नहीं। सरकार फरमाते हैं वइन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवात, सुभान अल्लाह। जिंदे मुर्दों को गिफ्ट देते हैं। सुभान अल्लाह। अरे यार बोलिए जल्दी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा क्या? अल इस्तिगफारो लहुम। सरकार ने फरमाया ये जो जिंदे मुर्दों के लिए इसाले सवाब करते हैं, ये जिंदों की तरफ से मुर्दों के लिए गिफ्ट है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? बस यही समझ। आप इस सदका जारिया में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।